प्रमाण सूत्र पंचविध ज्ञान संशय विमोह विभय विभज्यम् अपपरसरोऽस्य गहनं सम्मं ज्ञानं सायरमणीयभेयं तु तत्थ पंचविहनानं सुयमाभिनिभूयम् ऊहिनानं तुतय्यं मननानं च केवलम् पंचेव होन्ति नाना मदिसुदौ हि मनं च केवलयम् खयौवसमिया चौरो केवलनानं हवेखय्यम् इहापोह विमंसा मग्गणाय गवेषणा सन्ना सती मतिपन्ना सव्वं वाभिनिबोध्यम् अत्थावो अर्थन्तरमवलम्बे तं भणन्ति सुयणानम् आभिनिबोह्य पूर्वं नियमेन सद्दयं मूलम् इन्द्रियमनोनिमित्तं जम्बिन्नानं श्रियानुसारेण नियतत्थुतिसम्मत्थं तं भावसूयं मयि शेषं मयि पूर्वं श्रियमुत्तं न मयि श्रियपूर्व्या विशेषोऽयं पूर्वं पूरणपालन भावाओजं मयि तस्य अवहीयदित्यो हि सीमानानेत्तिवन्यं समये भवगुणपच्चय विहियं तमोहिनानत्तिनं विन्ति चिन्त्यमचिन्त्यं वा अद्धं चिन्त्य अनेयभेयगयम् अनपज्यवत्तीर्णानं जं जानयितं तु नरलोये केवलमेकं शुद्धं सकलमसाहारणम् अनन्तं च पायं च नानसद्दो नाम समाना हि गरणोऽयम् संभिन्नं पासन्तो लोकमलोकं च सव्वौ सव्वं तं नत्थिजं न पासयि भूयं भव्यं भविष्यं च प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण गेहनैवत्थु सहावम् अविरुद्धं सम्मरुवं जं नाणं भणियं खुतं पमाणं पच्छक्क परोक्षभेहिम् जीवो अक्खो अत्थौ ववण भोजन गुणन्योजेणं तं पैवट्टैणाणं जे पच्चक्खं तयं तिविहम् अक्षस्सपोग्गलकया जं दव्विन्द्रियमणापरातेणं तेहिं तो जं नाणं
परोक्षमिह तम् अनुमानं वो होन्ति परोक्षायं मयि श्रियायं जीवस्य परनिमित्ताओ पूवो वलद्ध संबद्ध शरणाओ वाणुमानं वो एगन्तेन परोक्षं लिङ्गीयमोहायं च पच्चक्षम् इन्द्रियमनोभवं जं तं संव्यवहारपच्चक्षम् Samana Suttam, Sutra 38, Percepts on Valid Knowledge, Pramana Sutra, English rendering. Gatha 674. Such a grasping of the nature of itself and that of other things as is, free from doubt, mistake, and uncertainty is called the right cognition. It is of a determinate form and is of various types. Gatha 675. The knowledge is of 5 kinds. Mati Jnana, that is the knowledge derived through the 5 senses and the mind. Shruta Jnana, knowledge obtained from the scripture. Avadhi Jnana, clairvoyance. Manaparya Jnana, that is telepathy, and Kevala Jnana, that is omniscience. Gatha 676. Knowledge is thus of 5 kinds: sensory knowledge, scriptural knowledge, clairvoyance, telepathy, and omniscience. The first 4 results from substance cum annihilation of the relevant karmas, while omniscience results after total annihilation of karmas. Gatha 677. Reflection on what has been perceived, reasoning, questioning, examining, searching, understanding, and judging. These are the varieties of sensory knowledge. Gatha 678. Shruta Jnana is said to consist of comprehension of the meaning of words that are heard, or it is derived from the sense and the mind, and it is a rule is born of words. Gatha 679. The knowledge which is required through the senses
and the mind by hearing or reading the scripture, and which is capable of expressing its content, is called Bhava Shruta Jnana. The rest of the knowledge acquired through thought activities and the senses is Mati Jnana. Gatha 680. The Shruta Jnana is acquired through Mati Jnana, while the Mati Jnana is not acquired through Shruta Jnana, but in the act of fostering thoughts, it is the characteristics of Mati Jnana that it precedes the Shruta Jnana. Gatha 681. The type of cognition which limits the direct knowledge is called avadhijnana. That is the clairvoyance. In the scripture, it is also called sima jnana. That is limited knowledge. This avadhijnana is of two types. That is one that is born on account of certain types of birth, and one that is born on account of practice of certain various qualities. Gatha 682. In this world of human beings, that type of cognition is called Mahaparyaya Jnana, which comprehends other thoughts, that is already entertained, that is not yet entertained, or that is only half entertained, and so on. It is of many types. Gatha 683. That type of cognition which is one pure, perfect, extraordinary, endless, is called Kevala Jnana. And here, as usual, the generic word Jnana is to be added to the specific word denotative of particular jnana type. Gatha 684. Kevala jnana grasps in one sweep all that is in this universe and beyond the universe in its entirety. Certainly, there is nothing in the past, future, and the present which is not grasped by the type of cognition. Gatha 685. The cognition which grasps the nature of things in a proper and uncontradicted form is called pramana. It is of two types. Pratyaksha
that is direct pramana, and paroksha, that is indirect pramana. Gatha 686. The word aksa means a soul, either because it covers the entire range of the things or because it enjoys these things. The two meanings depending on two different etymologies of the word aksa and type of the cognition, which is had to be an aksa, is called pratyaksha, that is of the three types. Gatha 687. The physical sense organs and the internal organs, that is mind, are something alien to an aksha or self, and the type of cognition had through the instrumentality of these two is called paroksha, just like internal cognition. Gatha 688. The two cognitions, mati and shruti, are paroksha, that is indirect, because they are acquired by a soul through the instrumentality of something alien to itself, or because they are born of the memory of relationship grasped either just like internal cognition, inferential cognition. Gatha 680. In a real sense, the cognition acquired through the other source is paroksha, that is indirect, while cognitions acquired directly by the soul is pratyaksha. But the cognition born of a sense organ is pratyaksha, particularly so called. Samana Suttam, Sutra 38, Pramana Sutra, a Panchavidha Jnana, Hindi rendering. Sutra 674, संशय विमोह यानी के विपर्यय और विभ्रम यानी अनध्यवसाय, इन तीनों मिथ्या ज्ञानों से रहित अपने और पर के स्वरूप का ग्रहण करना सम्यक ज्ञान है। यह वस्तु स्वरूप का यथार्थ निश्चय कराता है, अतएव इसे साकार अर्थात सविकल्प यानी के निश्चयात्मक कहा गया है। इसके अनेक भेद है। गाथा 675,
वह ज्ञान 5 प्रकार का है। अभिनिबोधिक या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। गाथा 676। इस प्रकार मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय और केवल के रूप में ज्ञान 5 ही है। इसमें से प्रथम 4 ज्ञान क्षयोपक्षमिक है और केवल ज्ञान क्षायिक है। एक देश क्षय व उपशम से उत्पन्न होने के कारण 4 ज्ञान अपूर्ण है और समस्त कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने के कारण 5वां केवल ज्ञान परिपूर्ण है। गाथा 677। इह अपोह मीमांसा मार्गणा गवेषणा संज्ञा शक्ति मति और प्रज्ञा ये सब अभिनिबोधिक या मति ज्ञान है। गाथा 678। अनुमान या लिंग ज्ञान की भांति अर्थ शब्द को जानकर उस पर से अर्थांतर या वाच्यार्थ को ग्रहण करना श्रुत ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान नियमतः अभिनिबोधिक ज्ञान पूर्वक होता है। इसके 2 भेद है, लिंगजन्य और शब्दजन्य। धुआं देखकर होने वाला अग्नि का ज्ञान लिंगज है और वाचक शब्द सुन या पढ़कर होने वाला शब्दज है। आगम में शब्दज श्रुत ज्ञान का प्राधान्य है। गाथा 679। इंद्रिय और मन के निमित्त से श्रुतानुसारी होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। वह अपने विषयभूत अर्थ को दूसरे से कहने में समर्थ होता है। शेष इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला अश्रुतानुसारी अवग्रहादि ज्ञान मति ज्ञान है। इससे स्वयं तो जाना जा सकता है किंतु दूसरे को नहीं समझाया जा सकता है। गाथा 680। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पूर्वक नहीं होता। यही दोनों ज्ञानों में अंतर है। पूर्व शब्द का प्रू धातु से बना है, उसका अर्थ है पालन और पूर्ण। श्रुत का पूर्ण और पालन करने से मति ज्ञान पूर्व में ही होता है। अतः मति पूर्वक ही श्रुत कहा गया है। गाथा 681। अवधीयते इति अवधिहि अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक
रूपी पदार्थों को एक देश जानने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। इसे आगम में सीमा ज्ञान भी कहा गया है। इसके दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। गाथा 682। जो ज्ञान मनुष्य लोक में स्थित जीव के चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित आदि अनेक प्रकार के अर्थ से मन को प्रत्यक्ष जानता है, वह मन पर्यय ज्ञान है। गाथा 683। केवल शब्द के एक शुद्ध, सकल, असाधारण और अनंत आदि अर्थ है। अतः केवल ज्ञान एक है। इंद्रियादि की सहायता से रहित है और उनके होने पर अन्य सब ज्ञान निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए केवल ज्ञान एकाकी है, मल कलंक से रहित होने से शुद्ध है, संपूर्ण ज्ञेयों का ग्राहक होने से सकल है। इसके समान और कोई ज्ञान नहीं है, अतः असाधारण है, इसका कभी अंत नहीं होता, अतः अनंत है। गाथा 684। केवल ज्ञान लोक और अलोक को सर्वतः परिपूर्ण रूप से जानता है। भूत, भविष्य और वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे केवल ज्ञान नहीं जानता। गाथा 685। प्रत्यक्ष अपरोक्ष प्रमाण। जो ज्ञान वस्तु स्वभाव को, यथार्थ स्वरूप को सम्यक रूप से जानता है, उसे प्रमाण कहते हैं। इसके दो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। गाथा 686। जीव को अक्ष कहते हैं और यह शब्द अशु व्याप्तो धातु से बना है। जो ज्ञान रूप में समस्त पदार्थ में व्याप्त है, वह अक्ष अर्थात जीव है। अक्ष शब्द की व्युत्पत्ति भोजन के अर्थ में अशु धातु से भी की जा सकती है। जो तीनों लोक की समस्त समृद्धि आदि को भोगता है, वह अक्ष अर्थात जीव है। इस तरह दोनों व्युत्पत्तियों से अर्थ व्यापन व भोजन गुण से जीव का अक्ष अर्थ सिद्ध होता है। उस अक्ष से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। इसके तीन भेद है, अवधि, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। गाथा 687। पौद्गलिक होने के कारण द्रव्येंद्रिय और मन अक्ष अर्थात जीव से पर है, अतः उनसे होने वाला ज्ञान परोक्ष कहलाता है। जैसे अनुमान में धूप से अग्नि का ज्ञान होता है, वैसे ही परोक्ष ज्ञान भी
पर के निमित्त से होता है। गाथा 6:8 जीव के मति और श्रुत ज्ञान पर निमित्तक होने के कारण परोक्ष है अथवा अनुमान की तरह पहले से उपलब्ध अर्थ के स्मरण द्वारा होने के कारण भी वे परनिमित्तक है। गाथा 6:8-9 धूम आदि लिंग से होने वाला श्रुत ज्ञान तो एकांत रूप से परोक्ष ही है। अवधि, मनपर्य और केवल ये तीनों ज्ञान एकांत रूप से प्रत्यक्ष ही है, किंतु इंद्रिय और मन से होने वाला मति ज्ञान लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष माना जाता है, इसलिए यह साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। समण सुत्तम सूत्र 38 प्रमाण सूत्र संस्कृत रेंडरिंग गाथा 6:74 संशय विमोह विभ्रम विवर्जित आत्म परस्परूपस्य ग्रहणं सम्यग् ज्ञानं साकार मनेक भेदं तु गाथा 6:75 तत्र पंचविधं ज्ञानं श्रुत माभिनिबोधिकम् अवधि ज्ञानं तु तृतीयं मनोज्ञानं च केवलम् गाथा 6:76 पंचैव भवन्ति ज्ञानानि मति श्रुतावधि मनश्च केवलम् क्षायोपशमक्षमिकानि चत्वारि केवल ज्ञानं भवेत् क्षायिकम् गाथा 6:77 इहा अपोहः विमर्शः मार्गणा च गवेषणा संज्ञा स्मृतिः मतिः प्रज्ञा सर्वम् आभिनिबोधिकम् गाथा 6:78 अर्थादयान्तरमुपलभ्यः तं भणन्ति श्रुतज्ञानम् अभिनिबोधिकपूर्वं नियमेन च शब्दजं मूलम् गाथा 6:79 इंद्रिय मनोनिमित्तं यद्विज्ञानं श्रुतानुसारेण निज कार्योक्ति समर्थं तत् भावश्रुतं मति शेषम्
Gatha 680. मति पूर्वं श्रुतमुक्तं न मतिः श्रुतपूर्विका विशेषोऽयम् पूर्वपूर्णपालन भावाद्यद्दत् मति तस्य. Gatha 681. अवदीयत इत्यवधिः सीमाज्ञानमिति वणितं समये भवगुणप्रत्ययविधिकं तत् अवधिज्ञानमिति ब्रुवन्ति. Gatha 682. चिन्तितमचिन्तितं वा अर्धं चिन्तितमनेकभेदगतं मनःपर्ययाति ज्ञानं यज्जानाति ततु नरलोके. Gatha 683. केवलमेकं शुद्धं सकलमसाधारणमनन्तं च प्रायश्च ज्ञानशब्दो नाम समानाधिकरणोऽयम्. Gatha 684. सभिन्नं पश्यन् लोकमलोकं च सर्वतः सर्वं तन्नास्ति यत्र पश्यन्ति भूतं भव्यं भविष्यय. Gatha 685. गृहाति वस्तु स्वभावम् अविरुद्धं सम्यक् रूपं यज्ज्ञानम् भणितं खलु तत् प्रमाणम् प्रत्यक्ष परोक्ष भेदाभ्याम्. Gatha 686. जीवः अक्षः अर्थ व्यापन भोजन गुणान्वितो येन तं प्रतिवर्तते ज्ञानं यत् प्रत्यक्षं तत् त्रिविधम्. Gatha 687. अक्षस्य पुद्गलकृतानि यत् द्रव्येन्द्रियमनांसि पराणि तेन तेस्तस्मात् यज्ज्ञानं परोक्षमिह तदनुमानमिव. Gatha 688. भवतः परोक्षे मतिश्रुते जीवस्य परनिमित्तात् पूर्वोपलब्धसम्बन्धस्मरणात् वानुमानवमी च. Gatha 689. एकान्तेन परोक्षं लैङ्गिकमद्वादिकं च प्रत्यक्षम् इन्द्रियमनोभवं यत् तत् संव्यवहार प्रत्यक्षम्.